So let us start with practice set 24, and the heading is write the following rational number in decimal form. That means we need to divide it and we need to write it in the decimal form. Decimal division भी बोलते हैं इसको हम लोग. So the first question is 13 divided by 4. 13 upon 4. Let us do the division here, students. Let us divide. 13 is divided by 4. So I want you to show the division also in the sum. It is compulsory. Let us start. Now 4 के टेबल में 13 जाता है क्या? नहीं. 13 से ऊपर वाला नंबर एक कम क्या होता है? 12. तो 12 जाता है. हाँ. 4 into what is 12? 4 3s are 12. Subtract. 13 minus 12 is what? 1. अभी कोई नंबर है क्या इधर जिसको हम नीचे लेके आके हम लोग सम को आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं. तो जब ऐसे आगे कोई डिजिट्स बचता नहीं है जिसको हम डिवीजन में नीचे ला सकते हैं, एट दैट टाइम वी नीड टू पुट अ डेसिमल पॉइंट. एक डेसिमल पॉइंट में वी कैन पुट एज मेनी जीरोस बट 1 एट अ टाइम. सो 1 पॉइंट, अभी एक जीरो लिख दिया हमने. 10 जाता है 4 के टेबल में? नहीं. 8 जाएगा. 4 2s are 8. Subtract 10 minus 8 2. Now अगेन मेरे पास कुछ नीचे लेके आने के लिए डिजिट नहीं है तो अब जीरो लिखना है. तो क्या फिर से पॉइंट देके जीरो लिखना है? नहीं. पॉइंट एक बार ही आता है, बार बार नहीं आता है. जीरो लिख सकते हैं हम बार बार, लेकिन एक टाइम पे एक ही जीरो लिखने का. तो पॉइंट ऑलरेडी दिया है हमने जीरो लिखा. 4 5s are 20. 4 5s are 20. We got the remainder 0. Once we get the remainder 0, our division is over. So therefore, what answer we got? 13 upon 4 is equal to 3.25. This is our final answer. Okay, next sum. Question number 2. Now in question number 2, it is minus 7 upon 8. Minus 7 by 8. So we'll divide. Start the division. Minus 7 by 8. -7 जो ऊपर का नंबर होता है ना वो डिवीजन में हमेशा अंदर जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का, उसमें गलती नहीं करने का. तो ऊपर का नंबर -7 हमने अंदर लिख दिया. -7 डिवाइडेड बाय 8. 8 का टेबल 8 1s are 8. 8 into 1 is 8. लेकिन 7 तो 8 से भी कम है, तो क्या करें? तो 0 से चालू करने का. 0. 8 0s are 0. डायरेक्ट पॉइंट नहीं देने का. Okay, we'll subtract. -7 minus 0 is nothing but -7 only. अभी to make it easy ना, we'll do one thing students. माइनस हटा देते हैं. माइनस ना हम लोग बाद में जो आंसर आएगा ना उसमें हम लिख सकते हैं. तो to make easy for us, we'll remove the minus. 7 minus 0 7. अभी पॉइंट डालो. सीधा पॉइंट से स्टार्ट नहीं करने का कभी भी. हाँ, अभी क्या करेंगे? अभी 8 का टेबल 8 into 9 is 72. राइट. 72 बड़ा है ना, तो ऊपर वाला 8 into 8 is 64. तो 8 8s are 64. Minus 70 minus 64 6. Now point है, we can put 0. Okay, then 8 7s are 56. So here 7. टेबल अच्छे से आना चाहिए. 8 7s are 56. 60 minus 56 4. पॉइंट है ऑलरेडी, हम 0 लिख सकते हैं. Then 8 5s are 40. We got the remainder 0. Therefore, we are going to conclude with the final answer. Therefore, -7 by 8 is equal to 0.875. और माइनस देना मत भूलो. माइनस है ना फ्रैक्शन में, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा. -0.875. Understood? Next sum. 7 3 upon 5. अभी ये जो जिसको डाउट था ना, हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आता है, मैंने पहले भी तुमको बहुत बार सिखाया है, अभी लास्ट टाइम सिखा रही हूँ. पे अटेंशन हियर. 7 3 by 5.
This is a mixed fraction, will first convert into simple fraction. Denominator as it is लिखते हैं. ये जो बाहर का नंबर है 7, इसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, प्लस न्यूमरेटर होता है 7 5 35, 35 plus 3 upon 5, which is equal to 38 upon 5. So this way you are going to convert the mixed fraction into simple fraction. Now we will divide. ऊपर का नंबर 38 अंदर जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 7 35, 38 minus 35 3, डेसिमल पॉइंट 0. 5 के टेबल में 30 जाता है, yes. 5 6 30, we got the remainder 0. So final answer हम लोग original question लिखेंगे. Therefore 7 3 by 5 is equal to 7.6. Next sum, 5 upon 12, 5 by 12. Sum number 4. Question number 4. 5 upon 12. So we'll divide. ऊपर का नंबर अंदर 5, 12. 5 is smaller than 12 ना. 12 ones are 12 किया तो भी 5 is smaller. So we will start with 0. कभी भी ना अंदर का नंबर जब बाहर के नंबर से स्मॉलर होता है तो we'll always start with 0. 12 zeros are 0. And then we will put the decimal point. Now let us continue. 12 fours are. What is 12 fours are? It is 48. So we are going to write 12 fours are 48. 50 minus 48 is 2. Point आएगा. Sorry, 0 आएगा. So then 12 ones are 12. 20 minus 12, 8. Again 0. Then 12 6 are 72. 12 7 जा 84. 84 बड़ा है ना 80 से, तो हम 6 के लिए जाएंगे. 6 जा 72. फिर से क्या आया? फिर से 8 आया, मतलब फिर से 0 आएगा, फिर से 80, फिर से 6 लिखेंगे, फिर से 72. मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक हम थक ना जाए, है ना. तो इसमें क्या करने का, वी कॉल इट एज द रिपीटिंग डेसिमल. दैट मीन्स ये 6 6 6 6 आते रहेगा, तो हमको ऐसे डॉट 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 लिखना है क्वेश्चन में. एंड फाइनल आंसर विल कंक्लूड लाइक दिस. स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर. 5 upon 12 is equal to 0.4166 dot 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 dot. Okay, in the next step we can write like this. 5 upon 12 equal to 0.41. अभी क्या रिपीट हो रहा है? 6 is repeating, so वो 6 के ऊपर ही डैश आएगा, सिर्फ 6 के ऊपर एक डैश. इसका मतलब ये है कि जिस डिजिट के ऊपर हमने डैश लिखा है, दैट डिजिट इज द रिपीटिंग डेसिमल, दैट इज रिपीटिंग. इट विल नेवर स्टॉप. और ऐसा डिवीजन का हमको रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलता है. Okay, the next one, 22 upon 7. Now 22 upon 7, 4 by 3. 22 upon 7 is actually a little big. It is also the same thing, recurring decimal. 5, 6 and 7. I want you to solve it on your own, or else we will solve in the next lecture.